تو پھر جب برٹین کی مسجدوں کے اندر یہ پروٹیسٹ ہو سکتا ہے تو میں پوچھ رہا ہوں عرب کے اندر جو تمام مسجدیں ہیں وہاں کیوں پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے کہ آخر یہ امام کعبہ صاحب جو ہیں یہ کیوں بہرے گونگے اندھے بنے ہوئے ہیں؟ اور جب آپ نے دیکھا تھا امام کعبہ آئے تھے یہاں کے اوپر کیا نام ہندوستان کے اندر ایسے سوچ رہے تھے ایسا دوڑ رہے تھے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جیسے اب جنت پکی ہے. اگر یہ سو رہے ہوں گے تو جاگ جائیں گے اور اگر مر گئے ہوں گے تو روح پھونکنے کا کام میرا نہیں ہے پروردگار عالم کا ہے. اگر یہ جاگ جائیں اور صرف ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کی سپلائی لائن ہے اس کو روک دیں ان سے ڈپلومیٹک ریلیشن کٹ کر دیں. اسلامک ممالک کی بات کر رہا ہوں کیونکہ چاروں طرف یورپ سے نہیں گھرے ہوئے ہیں یہ دبئی سے گھرے ہوئے ہیں جارڈن سے گھرے ہوئے ہیں یا مصر سے گھرے ہوئے ہیں یا ترکی سے گھرے ہوئے ہیں یا سعودی سے گھرے ہوئے ہیں. یہ وہاں کے اوپر اگر روک دیں تو آج بھی سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. ابھی پوپ نے بھی جو بیان دیا ہے ٹھیک ہے نئے والے پوپ پرانے والے پوپ نے بھی بیان دیا تھا نئے والے پوپ نے بیان دیا تھا کیا غزہ کا جنوسائیڈ روکو. آداب میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت میں آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہوا ہوں. بات کروں گا اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر اور خاص طور سے جس طرح سے پوری دنیا میں اب غزہ کو لے کر کے آواز بلند کی جا رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ بھلے ہی کچھ جگہوں پہ پروٹیسٹ کھل کر ہو رہے ہیں اور کچھ جگہوں پہ بہت خاموشی سے آواز اٹھ رہی ہے. مسجدوں میں جس طرح سے دعائیں کی جا رہی ہیں مسجدوں کے اندر جس طرح سے آپ دیکھیے کہ غزہ کے لیے عوامی ہمدردی حاصل ہو رہی ہے وہاں خطاب کیا جا رہا ہے کہ مظلومین کو کس طرح سے مارا جا رہا ہے تو ایک پوری ہلچل ہے. اور ابھی جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کی سٹوری میں بھی کہا کہ بول پڑی برٹین کی مسجدیں. یہ ایک سچائی ہے کہ وہاں کی جو 44 جو اسلامک سینٹر ہیں مسجدیں ہیں وہاں سے بڑی آواز اٹھی ہے. تو اب دھیرے دھیرے آپ دیکھیے کہ عوامی سطح پر چاہے وہ ٹرکی ہو چاہے وہ جارڈن ہو یا اور مصر ہو تمام آپ دیکھیے کہ اب عوامی بیداری ہو رہی کیونکہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور خاص طور سے کہ جب یورپ وغیرہ میں بہت زیادہ آواز اٹھ رہی ہو تو ایسے میں میں نے شوکت بھارتی صاحب جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کی کہ عوام کیا سوچ رہی ہوگی خاص طور سے عرب کے جو شہری ہیں وہ کس طرح سے محسوس کر رہے ہوں گے کیونکہ غزہ میں جو لوگ ہیں وہ عرب ہیں عجم نہیں ہیں اور ان کا پارٹ ہیں تو ان کے اندر کیا بے چینی نہیں پیدا ہو رہی ہوگی. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ خانہ کعبہ میں کیا اس چیز کو محسوس لوگ نہ کر رہے ہوں گے. ابھی حج بھی آنے والا ہے تو حج کے دوران بھی ظاہر ہے کہ اس بات کا ذکر ضرور وہاں پہ کیا جائے گا. یہ تمام اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس پر ہم نے شوکت بھارتی صاحب سے بات کی کہ آخر یہ جو غزہ کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو ڈسپلیس کرنے کی بات کی جا رہی تو کیا ڈسپلیس کر دینے سے یہ موضوع ختم ہو جائے گا کیا ڈسپلیس کر دینے سے غزہ کے لوگوں کو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ظلم کی داستان کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا کیا. تو اس پر جو انہوں نے جواب دیا وہ قابل سماعت ہے. انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے. سنیے شوکت بھارتی صاحب نے اس مسئلے پر اور کیا کہا ہے کیونکہ 2-3 بار اس پر بول چکے ہیں لیکن یہ جو بیان ہے وہ بہت زبردست ہے. سنیے شوکت بھارتی صاحب نے کیا کہا. سب سے بڑی شوکت بھارتی صاحب ایک بات جو میں نے کہی تھی کہ شروع میں اور وہ یہ میں عوامی سطح بات کرنا چاہتا ہوں کہ بول پڑی برٹین کی مسجدیں وہاں 40-42 جو مسجدیں تمام سے باقاعدہ گورنمنٹ کو گھیرا گیا حکومت پہ پریشر بنایا گیا اور لعنت ملامت کی گئی کہ تم کیسی حکومت ہو کہ تم ایک اسرائیل کو نہیں روک سکے وہاں پہ آپ کچھ کر نہیں سکے. تو وہاں پہ بڑا الگ طرح کا ماحول اور سب سے بڑا پروٹیسٹ 5-6 لاکھ لندن میں نکلے. اس کا عرب عوام پہ کیا اثر کیونکہ اگر باہر ہو رہا ہے اور باہر کی اس طرح سے مسجدوں سے اب باقاعدہ آوازیں اگر اٹھنے لگی تو کیا اس کا عرب کے عوام پہ اثر نہیں پڑے گا.
कल भी आपने उसका जिक्र किया था कि बहुत बेचैनी है, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो जॉर्डन हो या आप सऊदी के अंदर हो, वो बेचैनी तो है। जी शौकत भारती साहब। देखिए, जिस तरह से गजा शिफ्ट हो रहा है और वो जो अरब हुक्मरान या टर्की के रूलर साहब ये सोच रहे हैं कि हम गजा को खाली करवा देंगे और कुछ नहीं होगा, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जब गजा के लोग बाहर शिफ्ट होके जाएंगे और उनकी वो मदद करने के लिए वहां पर मुस्लिम सब आएंगे और लोग आएंगे, जब उनकी रुदात सुनेंगे तो गम गुस्सा इस कदर बढ़ेगा कि वो संभाला नहीं जाएगा। ठीक है, और गजा को खाली करने का खेल शुरू कर दिया गया। मैं बार बार यही कहता हूं कि आखिर ये इमाम काबा साहब जो हैं ये क्यों बहरे गूंगे अंधे बने हुए हैं? रूलर्स तो गुलाम हैं। रूलर्स का तो मामला आपने देख लिया कि उसने ट्रंप ने बता दिया कि ये किस तरह से हमारी निगाह में इनकी औकात क्या है। ये हमारे 2 टके के गुलाम हैं, ये इनको हम गाली भी देते हैं, ये हमें पैसे भी देते हैं और ये हमारे खिलाफ हिल नहीं सकते, ये उन्होंने मैसेज दे दिया। इस बयान के बाद क्या इमाम काबा को ये नहीं देखना चाहिए कि भाई अब इसके मतलब हमारा रूलर जो है वो जीरो हो गया है, हमारा रूलर जो है वो यहूद और नसारा का गुलाम है, हमारा रूलर जो है इस्लाम के तमाम उसूलों को तोड़ चुका है, इंसानियत के तमाम उसूलों को तोड़ चुका है, कुरान को छोड़कर यहूद और नसारा को सरपंच बनाया है। और ये किस सरजमीन के ऊपर हाकिम बना हुआ है? जिस सरजमीन को रसूलुल्लाह ने जहां के ऊपर इस्लाम फैलाया था, तमाम बुराइयां खत्म की थी, ये हर तरह की बुराइयां बढ़ा रहे हैं और यहूद और नसारा को की गुलामी में पूरा इस हमारे मुल्क को दे दिया है। अब तो समझ लेना चाहिए कि टर्की भी गुलाम है यहूद और नसारा का, क्या नाम है आपका सऊदी अरब भी गुलाम है, कतर भी गुलाम है, यूएई भी गुलाम है। तो फिर जब ब्रिटेन की मस्जिदों के अंदर यह प्रोटेस्ट हो सकता है, तो मैं पूछ रहा हूं अरब के अंदर जो तमाम मस्जिदें हैं वहां क्यों प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? और कल भी मैंने आपके चैनल के जरिए कहा था कि ये जो पेट्रो डॉलर पर पलने वाले मदरसे हैं जिनके पेट और कूले बहुत निकले हुए हैं, ठीक है, ये लोग जो हैं ये क्यों नहीं बोल रहे? इन अरब रूलर्स के खिलाफ ये क्यों खामोश हैं? अब तो फ्रांस बता दिया ना कि ये उन लोगों को डिसआर्म करना चाहते हैं जो फिलिस्तीनियों की दफा कर रहे हैं। अब तो किसी के सामने सच और झूठ मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया, हक और बातिल। आप ये देखिए मुमताज साहब, जब से ये सब होने लगा और हम आपके चैनल के जरिए और अपने चैनल पर इसको कंडेम करने लगे, तो जो कौम का दर्द रखने वाले चैनल बहुत बड़े बात करते हैं कि उनके मिल्लत का बड़ा दर्द है, उन्होंने इस इशू को हटा दिया। वो वक्त पे इशू पर बात कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। उन्होंने मिडिल ईस्ट को मतलब बिल्कुल जाकर सेकंड लाइन में डाल दिया, क्योंकि वहां के ऊपर क्या होगा, वहां के ऊपर अगर बोलेंगे तो अब इनकी मजबूरी होगी। अब बोले कैसे? उनसे फंड ले रहे हैं। आप उनके तमाम प्रोग्राम उठा के देख लिया, 3, 4, 5 दिन के अंदर आपको दिख जाएंगे कि इन्होंने जैसे फिलिस्तीन से किनारा कशी अख्तियार कर ली है। ठीक है, ये इजराइल की न्यूज बताएंगे, ये अमेरिका की न्यूज बताएंगे। ये क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इनके आका अब अपने आका को कैसे करें। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि जब उनके पेरोल पर पलने वाले लोग ऐसे हैं तो वो कैसे हैं। तो यहां से लेकर आपको क्या कह रहे हैं कि खाने काबा के इमाम तक आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है, ये कौन लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बिल्कुल और आखिर में मैं जो है कितने दिन तक इन लोगों को इस्लाम का सबसे बड़ा हीरो बनाकर, इस्लाम का मुहाफिज बनाकर, तौहीद का अलमबरदार बनाकर। और जब आपने देखा था इमाम काबा आए थे यहाँ के ऊपर, क्या नाम, हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे सोच रहे थे, ऐसा दौड़ रहे थे लोग उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए जैसे अब जन्नत पक्की है। हमें कसम खुदा की हम तो वहां जाके भी नमाज ना पढ़े ऐसे लोगों के पीछे। यहाँ तो छोड़ दीजिए, जाके बिना नमाज, जो इतने बेहिस हो। अगर इमाम काबा इतना बेहिस हो जाए तो फिर आप क्या मस्जिद के इमामों से आप तवक्को रख सकते हैं?
जब मस्जिद बिल्कुल नबवी का इमाम काबा इतना बेहिस हो, हाँ, और ये इसलिए नहीं बोल सकते ये सब गुलाम हैं, इन्होंने सिर्फ पैसे खाए हैं, वो चाहे यहाँ के अंदर हो चाहे बाहर के हो, दुनिया में इन्होंने एक नेटवर्क बनाया है, अपने आप को तौहीद परस्त बताया है, दूसरे को मुशरिक बताया है, ये सब इन लोगों ने मुसलमानों को फाड़ किया है, शिर्क बिदअत यही कह कह के मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, टुकड़ों में बांटा है इन लोगों ने। ये अरब रूलर्स के कहने के ऊपर ये अरबी दीन ले आए हैं, यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज का दीन नहीं है। जो ख्वाजा गरीब नवाज इनके जरिए लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे, जब ना देवबंद था, ना बरेली था, ना नदवा था, ना कुछ था, उन्होंने बताया था दीन अस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन। वो यजीदी दीन से दूर नहीं थे, वो यजीदी दीन से पूरी दूर थे, पूरा तरीके से उन्होंने बता दिया था। लेकिन अफसोस ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जिस तरह से मजलूमों की हमदर्दी का और उनको जिन लोगों ने इस्लाम की कुर्बानियां दी थी, उन्होंने अपने यहाँ से अली अली करवाया था, हुसैन हुसैन करवाया था, ये सब अली अली हुसैन हुसैन के बदतरीन दुश्मन थे। ये शिर्क और बिदअत ये लाए इस वास्ते थे कि किसी तरह से हम मजार से होने वाले अली अली को रोक दें और ताजियादारी के जरिए जो हुसैन हुसैन हो रहा है, क्योंकि अली और हुसैन किरदार वाला बनाता है और जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाता है, जुल्म के खिलाफ खड़ा रहना सिखाता है। इसलिए इन्होंने अली अली हुसैन हुसैन शिर्क और बिदअत के नाम के ऊपर इन्होंने खत्म किया। इन्होंने पूरी दुनिया में मुसलमानों को बांटा है सिर्फ दो चीजों से, शिर्क बिदअत और अपने आप को तौहीद का अलमबरदार। जबकि आज पूरी दुनिया ने देख लिया ये तौहीद के अलमबरदार नहीं, इनको अल्लाह से कुछ नहीं लेना देना है, इनको ट्रम्प से लेना देना है, अमेरिका से लेना देना है। ये अल्लाह पे भरोसा नहीं करते हैं, ये ट्रम्प के ऊपर भरोसा करते हैं। इनकी कुर्सियां जो है वो अमेरिका और यूरोप के ऊपर बची हुई हैं, और चूंकि वो इनको पेमेंट दे रहे थे इसलिए इन्होंने मुसलमानों को बांटने का एजेंडा, ये शिर्क बिदअत गली गली जो फैलाया है इन्होंने, ये इन्हीं लोगों ने फैलाया। और इसी शिर्क बिदअत से जो कुछ लोग पागल हो गए तो उनको हूर और जन्नत का इंजेक्शन लगा दिया, वो जिहाद के नाम के ऊपर फटने लगे। इस 4 इंजेक्शन ये जो तैयार किए गए थे, शिर्क बिदअत हूर जन्नत, ये शिर्क और बिदअत का इंजेक्शन यहाँ पर पेट्रोल डॉलर पर पलने वाले लोगों ने फैलाया। और जब शिर्क नाजरीन, इसके साथ साथ इसी में जोड़ करके हमने शौकत भारती साहब से ये सवाल भी किया कि जिस तरह से 80 ममालिक अब साथ आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, फिर यही नहीं बल्कि अब ताज़ा खबर यह आई है कि 300 जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जो ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई जाने लगी है और ये कहा गया है कि इजराइल के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए और जो नाकेबंदी कर रखी गई उसको ख़त्म कर देना चाहिए। 90 ट्रक का पहुंच जाना कुछ भी नहीं है, और 90 ट्रक जो पहुंचे हैं वो अभी नॉर्थ गाजा में वो नहीं पहुंचे हैं। तो आखिर वहाँ कैसे पहुंचे, खाना पानी, वहाँ के हालात अब भी बद से बदतर है। तो इस पर भी हमने शौकत भारती साहब से पूछा कि ये जो बात हो रही है इसको कैसे आप देखते हैं, ख़ास तौर से डिसआर्म करने की बात हो रही है या बहरहाल ये जो अब लोग उठ रहे हैं, क्या ये एक नई तब्दीली हम इसको कह सकते हैं? क्या नाम देंगे ये जो अब तमाम सांसद सामने आ रहे हैं, हुकूमतों की तरफ से आवाज़ उठ रही है? सुनिए इस पर शौकत भारती साहब ने क्या कहा। मैं चाहूंगा कि आखिर में कि क्या अब शक्ल सूरत बनेगी, वहां 90 ट्रक आए और आएंगे, क्या होगा? दूसरा, शम्स तबरेज़ साहब ने कहा है कि जो 80 कंट्री वाला मामला है, लेटर इशू होगा, वो क्या है? थोड़ा सा अगर उस पर भी रोशनी डाल दें, क्या उस पर होने जा रहा है? ये छोटे छोटे बस 2-2 मिनट के, क्योंकि टाइम हो रहा है। शौकत भारती साहब, देखिए, जब आदमी इस हद तक गिर जाए कि अब उसको अगर पकड़ेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, तो उससे फिर आदमी हाथ बचाता है। यूरोप जो है वो अपना हाथ इसलिए बचा रहे हैं कि अब वो उनके यहाँ रिवोल्ट आ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को उन्होंने पूरी दुनिया में इंसानियत का अलंबरदार बनाकर पेश किया था। अभी पोप ने भी जो बयान दिया है, ठीक है, नए वाले पोप, पुराने वाले पोप ने भी बयान दिया था, नए वाले पोप ने भी बयान दिया था, क्या गजा का जेनोसाइड रोको, बंद करो।
तो जाहिर सी बातचीत है कि जो मजहबी लोग हैं वो पोप की सुन रहे हैं। किसकी सुन रहे हैं? पोप की, वो रूलर्स की नहीं। अब वो देख रहे हैं कि उनके रूलर्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये तो जेनोसाइड हो रहा है, जो बच्चे को मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल तोड़े जा रहे हैं, यानी वो उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था कि दुनिया में हम ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े अलमबरदार हैं, वो टूट रहा है। इसके वजह से वो लोग अपने अपने आप को अलग कर रहे हैं। अगर वाकई आज इनके अंदर जमीर जिंदा हो जाए, अगर ये सो रहे होंगे तो जाग जाएंगे, और अगर मर गए होंगे तो रूह फूकने का काम मेरा नहीं है, परवरदिगार आलम का है। अगर ये जाग जाएं और सिर्फ इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो इनकी सप्लाई लाइन है उसको रोक दें, इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन कट कर दें। इस्लामिक ममालिक की बात कर रहा हूं, क्योंकि चारों तरफ यूरोप से नहीं घिरे हुए हैं, ये दुबई से घिरे हुए हैं, जॉर्डन से घिरे हुए हैं, या मिस्र से घिरे हुए हैं, या टर्की से घिरे हुए हैं, या सऊदी से घिरे हुए हैं। ये वहां के ऊपर अगर रोक दें तो आज भी सारे मामला हल हो सकते हैं। लेकिन ये हौसला वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये फैसला हमको नहीं करना है, उनको फैसला करना है। और अगर ये फैसला कर लेंगे तो आज भी इनकी जो गिरी हुई इमेज है वो बन जाएगी, वरना इनकी इमेज और इनके सपोर्टर्स की इमेज पूरी दुनिया में इस वक्त खत्म हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और मालूम कर रहे थे कि आखिर जिस तरह की आवाज़ें उठ रही इसका अंजाम क्या होगा। बहरहाल इस तरह की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। और अगर आपको मुनासिब लगे तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।